بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو اے ایس ناولز ان۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ پیش خدمت ہے ناول پیر کامل کی قسط نمبر 15۔ میں گاڑی کچھ دیر کے لیے یہاں روکنا چاہ رہا ہوں، سالار نے سڑک کے کنارے بنے ہوئے ایک سستے قسم کے ہوٹل اور سروس اسٹیشن کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میں ذرا ٹائر چیک کروانا چاہ رہا ہوں، گاڑی میں دوسرا ٹائر نہیں ہے، رستے میں اگر کہیں ٹائر فلیٹ ہو گیا تو بہت مسئلہ ہوگا۔ امامہ نے صرف سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ وہ گاڑی موڑ کر اندر لے گیا۔ اس وقت کہیں فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ ہوٹل میں کام کرنے والے 2-4 لوگوں کے علاوہ وہاں اور کوئی نہیں تھا۔ اسے گاڑی اندر لاتے دیکھ کر ایک آدمی باہر نکل آیا۔ شاید وہ گاڑی کی آواز سن کر آیا تھا۔ سالار گاڑی کا دروازہ کھول کر نیچے اتر گیا۔ وہ کچھ دیر سیٹ کی پشت سے سر ٹکائے آنکھیں بند کیے بیٹھی رہی۔ اذان کی آواز کچھ زیادہ بلند ہو گئی تھی۔ امامہ نے آنکھیں کھول دیں۔ کار کا دروازہ کھول کر وہ باہر نکل آئی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر سالار نے گردن موڑ کر اسے دیکھا تھا۔ یہاں کتنی دیر رکنا ہے؟ وہ سالار سے پوچھ رہی تھی۔ 10-15 منٹ۔ میں انجن بھی ایک دفعہ چیک کروانا چاہتا ہوں۔ میں نماز پڑھنا چاہتی ہوں، مجھے وضو کرنا ہے، اس نے سالار سے کہا۔ اس سے پہلے کہ سالار کچھ کہتا، اس آدمی نے بلند آواز میں اسے پکارتے ہوئے کہا، باجی وضو کرنا ہے تو اس ڈرم سے پانی لے لیں۔ اور وہ نماز کہاں پڑھے گی؟ سالار نے اس آدمی سے پوچھا۔ یہ سامنے والے کمرے میں۔ میں جائے نماز دے دیتا ہوں۔ وہ اب پائپ اتار رہا تھا۔ پہلے جائے نماز دے دوں پھر انجن آ کر چیک کرتا ہوں، اس آدمی نے اس کمرے کی طرف جاتے ہوئے کہا۔ سالار نے دور سے امامہ کو اس ڈرم کے پاس کچھ تذبذب کی حالت میں کھڑے دیکھا۔ وہ لاشعوری طور پر آگے چلا آیا۔ وہ تارکول کا ایک بہت بڑا خالی ڈرم تھا جسے ایک ڈھکن سے کور کیا گیا تھا۔ اس میں سے پانی کیسے لوں؟ امامہ نے قدموں کی چاپ پر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ سالار نے ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ کچھ فاصلے پر ایک بالٹی پڑی ہوئی تھی، وہ اس بالٹی کو اٹھا لایا۔ میرا خیال ہے یہ اسی بالٹی کو پانی نکالنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس نے امامہ سے کہتے ہوئے ڈرم کا ڈھکن اٹھایا اور اس میں سے پانی بالٹی میں بھر لیا۔ میں کرا دیتا ہوں وضو۔ سالار کو اس کے چہرے پر تذبذب نظر آیا، مگر کچھ کہنے کی بجائے وہ اپنی آستین اوپر کرنے لگی۔ اپنی گھڑی اتار کر اس نے سالار کی طرف بڑھا دی اور پنجوں کے بل زمین پر بیٹھ گئی۔ سالار نے اس کے بڑے ہوئے ہاتھوں پر کچھ پانی ڈالا۔ امامہ کو بے اختیار جیسے کرنٹ لگا۔ اس نے یکدم اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے۔ کیا ہوا؟ سالار نے کچھ حیرانی سے کہا۔ کچھ نہیں، پانی بہت ٹھنڈا ہے، تم پانی ڈالو۔ وہ ایک بار پھر ہاتھ پھیلا رہی تھی۔ سالار نے پانی ڈالنا شروع کر دیا۔ وہ وضو کرنے لگی۔ پہلی بار سالار نے اس کے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دیکھا۔ کچھ دیر کے لیے وہ اس کی کلائیوں سے نظر نہیں ہٹا سکا، پھر اس کی نظر اس کی کلائیوں سے اس کے چہرے پر چلی گئی۔ وہ اپنی چادر کو ہٹائے بغیر بڑی احتیاط کے ساتھ سر، کانوں اور گردن کا مسح کر رہی تھی، اور سالار کی نظریں اس کے ہاتھوں کی حرکت کے ساتھ ساتھ سفر کر رہی تھیں۔ اس کی گردن میں موجود سونے کی چین اور اس میں لٹکنے والے موتی کو بھی اس نے پہلی بار دریافت کیا تھا۔ سالار نے اسے جتنی بار دیکھا تھا اسی طرح کی چادر میں دیکھا تھا۔ چادر کا رنگ مختلف ہوتا مگر وہ ہمیشہ اسے ایک ہی انداز میں لپیٹے ہوتی۔ وہ کبھی اس کے خد و خال پر غور نہیں کر سکا۔ پاؤں پر پانی میں خود ڈال لیتی ہوں۔ اس نے کھڑے ہوتے ہوئے سالار کے ہاتھ سے اس بالٹی کو پکڑ لیا جو اب تقریباً خالی ہونے والی تھی۔ سالار چند قدم پیچھے ہٹ کر محویت سے دیکھنے لگا۔ وہ وضو کر چکی تو سالار کی محویت ختم ہو گئی۔ اس نے گھڑی اس کی طرف بڑھا دی۔ آگے پیچھے چلتے ہوئے وہ اس کمرے تک آئے جہاں وہ آدمی گیا تھا۔ وہ آدمی جب تک کمرے میں ایک طرف مصلی بچھا چکا تھا۔ امامہ خاموشی سے جائے نماز کی طرف بڑھ گئی۔ لاہور کی حدود میں داخل ہوتے ہی امامہ نے اس سے کہا، اب تم مجھے کسی بھی اسٹاپ پر اتار دو، میں چلی جاؤں گی۔ تم جہاں جانا چاہتی ہو میں تمہیں وہاں چھوڑ دیتا ہوں۔ اتنی دھند میں کسی ٹرانسپورٹ کا انتظار کرتے تمہیں بہت وقت لگے گا۔ سڑکیں اس وقت تقریباً ویران تھیں، حالانکہ صبح ہو چکی تھی، مگر دھند نے ہر چیز کو لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ مجھے نہیں پتہ مجھے کہاں جانا ہے، پھر تمہیں میں کس جگہ کا پتہ بتاؤں؟ ابھی تو شاید میں ہاسٹل جاؤں اور پھر وہاں۔ سالار نے اس کی بات کاٹ دی۔ تو پھر میں تمہیں ہاسٹل چھوڑ دیتا ہوں۔ کچھ فاصلہ اسی طرح خاموشی سے طے ہوا۔ پھر ہاسٹل سے کچھ فاصلے پر امامہ نے اس سے کہا، بس تم یہاں گاڑی روک دو، میں یہاں سے خود چلی جاؤں گی۔ میں تمہارے ساتھ ہاسٹل نہیں جانا چاہتی۔
सालार ने सड़क के किनारे गाड़ी रोक दी। पिछले कुछ हफ्तों में तुमने मेरी बहुत मदद की है, मैं इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहते हूँ। तुम मेरी मदद ना करते तो आज मैं यहाँ ना होती। वो एक लम्हे के लिए रुकी। तुम्हारा मोबाइल अभी मेरे पास है, मगर मुझे अभी इसकी ज़रूरत है। मैं कुछ अरसे बाद इसे वापस भिजवा दूँगी। इसकी ज़रूरत नहीं, तुम इसे रख सकती हो। मैं कुछ दिनों बाद तुमसे दोबारा रब्ता करूँगी, फिर तुम मुझे तलाक के पेपर्स भिजवा देना। वो रुकी। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरे पेरेंट्स को कुछ नहीं बताओगे। ये कहने की ज़रूरत थी? सालार ने भवें उचकाते हुए कहा। मुझे कुछ बताना होता तो मैं बहुत पहले बता चुका होता। सालार ने कदरे सर्द मोहरी से कहा। तुम मुझे बहुत बुरा लड़का समझती थी। क्या अभी भी तुम्हारी मेरे बारे में वही राय है, या तुमने अपनी राय में कुछ तब्दीली की है? सालार ने अचानक तीखी मुस्कुराहट के साथ उससे पूछा। तुम्हें नहीं लगता कि मैं दरअसल बहुत अच्छा लड़का हूँ? हो सकता है, इमामा ने मध्यम आवाज़ में कहा। सालार को उसकी बात पर जैसे शौक लगा। हो सकता है? वो बेयकीनी से मुस्कुराया। अभी भी हो सकता है। तुम बहुत नाशुक्री हो इमामा। मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है जो इस ज़माने में कोई लड़का नहीं करेगा, और फिर भी तुम मुझे अच्छा मानने पर तैयार नहीं। मैं नाशुक्री नहीं हूँ। मुझे एतराफ़ है कि तुमने मुझ पर बहुत एहसान किए हैं, और शायद तुम्हारी जगह कोई दूसरा कभी ना करता। सालार ने उसकी बात काट दी। तो मैं अच्छा हुआ ना? वो कुछ नहीं बोली, सिर्फ उसे देखती रही। नहीं, मुझे पता है तुम यही कहना चाहती हो। हालांकि मशरकी लड़की की खामोशी उसका इकरार होती है, मगर तुम्हारी खामोशी तुम्हारा इनकार होती है। ठीक कह रहा हूँ ना? हम एक फ़जूल बहस कर रहे हैं। हो सकता है, सालार ने कंधे उचकाए, मगर मुझे हैरानी है कि तुम। इस बार इमामा ने उसकी बात काट दी। तुमने मेरे लिए यकीनन बहुत कुछ किया है, और अगर मैं तुम्हें जानती ना होती तो यकीनन मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा इंसान समझती और कह भी देती, मगर मैं तुम्हें इतनी अच्छी तरह जानती हूँ कि मेरे लिए ये कहना मुश्किल है कि तुम एक अच्छे इंसान हो। वो रुकी। सालार पलकें झपकाए बगैर उसे देखता रहा। जो आदमी खुदकुशी की कोशिश करता हो, शराब पीता हो, जिसने अपना कमरा औरतों की बरहना तस्वीरों से भर रखा हो, वो अच्छा आदमी तो नहीं हो सकता। इमामा ने दो टोक अंदाज में कहा। तुम किसी ऐसे आदमी के पास जाती जो ये तीनों काम ना करता, मगर तुम्हारी मदद भी ना करता, तो क्या तुम्हारे लिए वो अच्छा आदमी होता? सालार ने तेज़ आवाज़ में कहा। जैसे जलाल अंसर। इमामा के चेहरे का रंग बदल गया। हाँ, उसने मेरी मदद नहीं की, मुझसे शादी नहीं की, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि वो बुरा हो गया है। वो अच्छा आदमी है, अभी भी मेरे नज़दीक अच्छा है। और मैंने तुम्हारी मदद की, तुमसे शादी की, मगर यकीनन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अच्छा हो गया हूँ। मैं बुरा आदमी हूँ। वो अजीब से अंदाज में कहते हुए मुस्कुराया। तुम्हारा खुद अपने बारे में क्या ख्याल है इमामा? क्या तुम अच्छी लड़की हो? उसने अचानक चुभते हुए अंदाज में पूछा, और फिर जवाब का इंतज़ार किए बगैर कहने लगा। मेरे नज़दीक तुम भी अच्छी लड़की नहीं हो। तुम भी एक लड़के के लिए अपने घर से भागी हो। अपने मंगेतर को धोखा दिया है तुमने, अपनी फैमिली की इज्जत को ख़राब किया है तुमने। सालार ने हर लिहाज बालाए ताक रखते हुए साफ गोई से कहा। इमामा की आंखों में हल्की सी नमी आ गई। तुम ठीक कहते हो, मैं वाकई अच्छी लड़की नहीं हूँ। अभी मुझे ये जुमला बहुत से लोगों से सुनना है। मैं तुम्हें बहुत लंबी चौड़ी वजाहत दे सकती हूँ, मगर उसका कोई फ़ायदा नहीं। तुम इन चीज़ों को नहीं समझ सकते। फ़र्ज़ करो मैं तुम्हें लाहौर ना लेकर आता, कहीं और ले जाता फिर, मगर मैं तुम्हें बाहिफाजत यहाँ ले आया। ये मेरा तुम पर कितना बड़ा एहसान है, तुम्हें अंदाज़ा है इसका? इमामा गर्दन मोड़कर उसे देखने लगी। मुझे यकीन था तुम मुझे कहीं और नहीं ले जाओगे। वो उसकी बात पर हंसा। मुझ पर यकीन था? क्यों? मैं तो एक बुरा लड़का हूँ। मुझे तुम पर यकीन नहीं था, अल्लाह पर यकीन था। सालार के माथे पर कुछ बल पड़ गए। मैंने अल्लाह और अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सब कुछ छोड़ दिया है। ये कभी नहीं हो सकता था कि वो मुझे तुम्हारे जैसे आदमी के हाथों रुस्वा करते। ये मुमकिन ही नहीं था। फ़र्ज़ करो ऐसा हो जाता। सालार मुसिर हुआ। मैं ऐसी बात क्यों फ़र्ज़ करूं जो नहीं हुई? वो अपनी बात पर कायम थी। यानी तुम मुझे किसी किस्म का कोई क्रेडिट नहीं दोगी? वो मजाक उड़ाने वाले अंदाज में मुस्कुराया। अच्छा फ़र्ज़ करो मैं अब तुम्हें जाने नहीं देता, तो तुम क्या करोगी? गाड़ी का दरवाज़ा जब तक मैं नहीं खोलूँगा नहीं खुलेगा, ये तुम जानती हो। अब बताओ,
तुम क्या करोगी? वो यकटुक उसे देखती रही। या मैं ये करता हूँ। सालार ने डैशबोर्ड पर पड़ा हुआ अपना मोबाइल उठाया और उस पर एक नंबर डायल करने लगा कि तुम्हारे घर फ़ोन कर देता हूँ। उसने मोबाइल की स्क्रीन को उसकी आंखों के सामने लहराया। उस पर इमामा के घर का नंबर था। मैं उन्हें तुम्हारे बारे में बताता हूँ कि तुम कहाँ हो, किसके साथ हो, फिर यहाँ से तुम्हें सीधा पुलिस स्टेशन ले जाकर उनकी तहवील में दे देता हूँ। तो फिर तुम्हारे एतकाद और एतबार का क्या हुआ? वो मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कह रहा था। इमामा चुपचाप उसे देखती रही। सालार को बेहद खुशी हुई। सालार ने मोबाइल ऑफ करते हुए एक बार फिर उसकी आंखों के सामने लहराया। कितना बड़ा एहसान कर रहा हूँ मैं तुम पर के ऐसा नहीं कर रहा। उसने मोबाइल को दोबारा डैशबोर्ड पर रखते हुए कहा। हालांकि तुम बेबस हो, कुछ भी नहीं कर सकती। इसी तरह रात को मैं तुम्हें कहीं और ले जाता तो तुम क्या कर लेती? मैं तुम्हें शूट कर देती। सालार ने हैरानी से उसे देखा, फिर कह कहा मार कर हंसा। क्या कर देती? मैं तुम्हें शूट कर देती, उसने उसी अंदाज में रुक रुक कर कहा। वो स्टीयरिंग पर दोनों हाथ रखकर खिलखिला कर हंसा। कभी जिंदगी में पिस्टल देखा भी है तुमने? उसने इमामा का मजाक उड़ाते हुए कहा। सालार ने उसे झुकते और अपने पाँव की तरफ हाथ बढ़ाते देखा। जब वो सीधी हुई तो उसने सालार से कहा, शायद इसे कहते हैं। सालार हंसना भूल गया। उसके दाएं हाथ में छोटे साइज़ का एक बहुत खूबसूरत और कीमती लेडीज़ पिस्तौल था। सालार पिस्तौल पर उसके हाथ की गिरफ्त देखकर जान गया था कि वो किसी अनाड़ी के हाथ में नहीं था। उसने बेयकीनी से इमामा को देखा। तुम मुझे शूट कर सकती थी? हाँ, मैं तुम्हें शूट कर सकती थी, मगर मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि तुमने मुझे कोई धोखा नहीं दिया, उसने मुस्तहकम आवाज़ में कहा। उसने पिस्तौल सालार की तरफ नहीं किया था, सिर्फ अपने हाथ में रखा था। गाड़ी का लॉक, उसने बात अधूरी छोड़ते हुए सालार से कहा। सालार ने गैर इरादी तौर पर अपनी तरफ मौजूद बटन दबाकर लॉक खोल दिया। इमामा ने दरवाज़ा खोल दिया। वो अब पिस्तौल अपनी गोद में मौजूद बैग में रख रही थी। दोनों के दरमियान मज़ीद कोई बात नहीं हुई। इमामा ने गाड़ी से बाहर निकलकर उसका दरवाज़ा बंद कर दिया। सालार ने उसे तेज़ कदमों के साथ एक करीब आती हुई वैगन की तरफ जाते और फिर उसमें सवार होते देखा। उसकी कुव्वते मुशाहिदा बहुत तेज़ थी। वो किसी भी शख्स के चेहरे को पढ़ सकता था और उसे इस चीज़ पर बड़ा ज़ौम था। मगर वहाँ उस धुंध आलूद सड़क पर गाड़ी पर बैठे हुए उसने एतराफ़ किया, वो इमामा हाशिम को नहीं जान सका था। वो अगले कई मिनट स्टीयरिंग पर दोनों हाथ रखे बेयकीनी के आलम में वहीं बैठा रहा था। इमामा हाशिम के लिए उसकी नापसंदीदगी में कुछ और इजाफा हो गया था। वो वापसी पर धुंध की परवाह किए बगैर पूरी रफ्तार से गाड़ी चला कर आया था। पूरा रास्ता उसका जहन इसी उधेड़ बुन में लगा हुआ था कि उसने पिस्तौल आखिर कहाँ से निकाला था। वो पूरे वसूख से कह सकता था कि जिस वक्त वो वज़ू के लिए पाँव धो रही थी उस वक्त वो पिस्तौल उसकी पिंडल के साथ नहीं था, वरना वो ज़रूर उसे देख लेता। और नमाज़ पढ़ने के दौरान भी बगौर उसे सर से पाँव तक देखता रहा। पिस्तौल तब भी उसकी पिंडल के साथ बंधा हुआ नहीं था। वो बर्गर खाने और चाय पीने के बाद गाड़ी में आकर बैठ गई थी और वो कुछ देर बाद गाड़ी में आया था। वो यकीनन गाड़ी में मौजूद उसके बैग में ही होगा। वो अंदाज़े लगाता रहा और जिस वक्त अपने घर पहुंचा उसका मूड ऑफ था। गेट से गाड़ी अंदर ले जाते हुए उसने चौकीदार को अपनी तरफ बुलाया। रात को मैं जिस लड़की के साथ यहाँ से गया था, तुम उसके बारे में किसी को नहीं बताओगे? बल्कि मैं रात को कहीं नहीं गया, समझ में आया? उसने तहकुमाना अंदाज में कहा। जी, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। चौकीदार ने फर्माबरदारी से सर हिलाया। वो अहमक नहीं था कि ऐसी चीज़ों के बारे में किसी को बताता फिरता। अपने कमरे में आकर वो इत्मीनान के साथ सो गया। उसका उस दिन कहीं जाने का इरादा नहीं था। वो उस वक्त गहरी नींद में था जब उसने अचानक किसी को अपने कमरे के दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से बजाते सुना। वो यकदम उठकर बैठ गया। दरवाज़ा वाकई बज रहा था। उसने मुंदी हुई नज़रों से वॉल क्लॉक को देखा जो 4 बजा रहा था। अपनी आंखों को रगड़ते हुए वो अपने बेड से उठ खड़ा हुआ। उसे दरवाज़ा बजाने वाले पर शदीद गुस्सा आ रहा था। इसी गुस्से के आलम में उसने बड़बड़ाते हुए एक झटके के साथ दरवाज़ा खोल दिया। बाहर मुलाजिम खड़ा था। क्या तकलीफ़ है तुम्हें? क्यों इस तरह दरवाज़ा बजा रहे हो? दरवाज़ा तोड़ना चाहते हो तुम? वो दरवाज़ा खोलते ही मुलाजिम पर चिल्लाया। सालार साहब, बाहर पुलिस खड़ी है, मुलाजिम ने घबराए हुए अंदाज में कहा। सालार का गुस्सा और नींद 1 मिनट में गायब हो गए।
1 सेकंड से भी कम अरसे में वो पुलिस के वहाँ आ जाने की वजह जान गया था और उसे उनकी और इमामा के घर वालों की इस मुस्तैदी पर हैरत हुई। आखिर चंद घंटे में सीधे उस तक कैसे पहुंच गए थे? किस लिए आई है पुलिस? उसने अपनी आवाज़ को पुरसुकून रखते हुए बेतासुर चेहरे के साथ पूछा। ये तो नहीं पता जी, वो बस कह रहे हैं कि आपसे मिलना है। मगर चौकीदार ने गेट नहीं खोला। उसने उनसे कह दिया है कि आप घर पर नहीं हैं, मगर उनके पास आपके वारंट हैं और वो कह रहे हैं कि अगर उन्हें अंदर नहीं आने दिया गया तो वो ज़बरदस्ती अंदर आ जाएंगे और तमाम लोगों को गिरफ्तार करके ले जाएंगे। सालार ने बेख्तियार इत्मीनान भरा सांस लिया। चौकीदार ने वाकई बड़ी अक्लमंदी का मुजाहरा किया था। उसे यकीनन ये अंदाज़ा हो गया था कि पुलिस रात वाली लड़की के मामले में ही तफ्तीश के लिए वहाँ आई थी। इसलिए उसने ना तो पुलिस को अंदर आने दिया, ना ही उन्हें ये बताया कि सालार घर पर मौजूद था। तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ, सालार ने मुलाजिम से कहा और वापस अपने बेडरूम में आ गया। वो किसी आम शहरी का घर होता तो पुलिस शायद दीवारें फलांग कर भी अंदर मौजूद होती, मगर इस वक्त वारंट होने के बावजूद इस घर का साइज़ और जिस इलाके में वो वाक़या था उन्हें खौफ में मुब्तला कर रहे थे। अगर इमामा का ख़ानदान भी असर और रसूख वाला नहीं होता तो शायद इस वक्त पुलिस इस सेक्टर में आने और ख़ास तौर पर वारंट के साथ आने की जुर्रत ही ना करती। मगर इस वक्त पुलिस के सामने आगे कुआं पीछे खाई वाली सूरत थी। सालार ने बेडरूम के अंदर आते ही फ़ोन उठाकर कराची सिकंदर उस्मान को फ़ोन किया। पापा, एक छोटा सा प्रॉब्लम हो गया है, उसने छूटते ही कहा। यहाँ हमारे घर के बाहर पुलिस खड़ी है और उनके पास मेरे गिरफ्तारी के वारंट हैं। सिकंदर उस्मान के हाथ से मोबाइल गिरते गिरते बचा। क्यों? ये तो नहीं पता पापा, मैं सो रहा था, मुलाजिम ने जगाकर मुझे बताया। क्या मैं जाकर पुलिस वालों से पूछूं कि वो किस सिलसिले में मुझे गिरफ़्तार करना चाहते हैं? सालार ने बड़ी फर्माबरदारी और मासूमियत के साथ सिकंदर उस्मान से पूछा। नहीं, बाहर निकलने या पुलिस को अंदर बुलवाने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपने कमरे में ही रहो, मैं थोड़ी देर बाद तुम्हें रिंग करता हूँ। सिकंदर उस्मान ने उजलत के आलम में मोबाइल बंद कर दिया। सालार ने मुतमईन होकर फ़ोन रख दिया। वो जानता था कि अब कुछ देर बाद पुलिस वहाँ नहीं होगी और वाकई ऐसा ही हुआ। 10-15 मिनट के बाद मुलाजिम ने आकर उसे पुलिस के जाने के बारे में बताया। मुलाजिम अभी उससे बात कर ही रहा था जब सिकंदर ने दोबारा कॉल की थी। पुलिस चली गई है? सिकंदर ने उसकी आवाज़ सुनते ही कहा। हाँ, चली गई है, सालार ने बड़े इत्मीनान भरे अंदाज में कहा। अब तुम मेरी बात ठीक तरह सुनो, मैं और तुम्हारी मम्मी रात को कराची से इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। तुम तब तक घर से कहीं नहीं निकलोगे, सुना तुमने? सालार को उनकी बात करने का अंदाज़ बहुत अजीब सा लगा। उन्होंने बहुत अक्खड़ अंदाज और सर्दमोहरी से उससे बात की थी। सुन लिया, वो दूसरी तरफ से फ़ोन बंद कर चुके थे। सालार अभी फ़ोन बंद कर रहा था जब उसकी नज़र अपने कमरे के कारपेट पर पड़ी। वहाँ जूते के निशानात थे। उसने देखा कि मुलाजिम भी कदरे हैरानी के आलम में इन निशानात को देख रहा था जो खिड़की से कितार की सूरत में बढ़ रहे थे। जूते के इन निशानात को साफ़ कर दो, सालार ने तहकुमाना अंदाज में कहा। मुलाजिम कमरे से बाहर चला गया। सालार उठकर खिड़की की तरफ आ गया और उसने वो स्लाइडिंग विंडो पूरी तरह खोल दी। उसका अंदाज़ा ठीक था। जूते के वो मट्टी वाले निशानात बाहर बरामदे में भी मौजूद थे। इमामा अपनी क्यारियों से गुजर कर दीवार फलांग कर उसकी क्यारियों में कूदी थी और यही वजह थी कि उसके जूते के तले मट्टी से भर गए थे और उसकी वजह से वो मट्टी कम और कीचड़ ज़्यादा थी और उसके बरामदे के सफ़ेद मार्बल पर वो निशानात बिल्कुल एक कितार की सूरत में नज़र आ रहे थे। वो एक गहरी सांस लेता हुआ अंदर आ गया। मुलाजिम कमरे में इन निशानात को साफ़ करने में मसरूफ़ था। बाहर बरामदे में भी पैरों के कुछ निशानात हैं, उन्हें भी साफ़ कर देना। सालार ने उससे कहा। ये किसके निशान हैं? मुलाजिम ज़्यादा देर अपने तजस्सुस पर काबू नहीं रख सका। मेरे, सालार ने अक्खड़ लहजे में कहा। वो रात को खाना खाने में मसरूफ़ था जब सिकंदर उस्मान और तैयबा आ गए थे। उन दोनों के चेहरे सुते हुए थे। सालार इत्मीनान से खाना खाता रहा। वो दोनों उसे मुखातिब किए बगैर उसके पास से गुजर कर चले गए थे। खाना ख़त्म करके मेरे कमरे में आओ, सिकंदर उस्मान ने जाते जाते उससे कहा था। सालार ने जवाब देने की बजाय फ्रूट राइफ़ल अपनी प्लेट में निकाल ली। 15 मिनट बाद वो जब उनके कमरे में गया तो उसने सिकंदर को कमरे में टहलते हुए पाया, जबकि
तैयबा फ़िक्रमंदी के आलम में सोफ़े पर बैठी हुई थी। पापा, आपने बुलवाया था? सालार ने अंदर दाखिल होते हुए कहा। बैठो, फिर तुम्हें बताता हूँ क्यों बुलाया है। सिकंदर उस्मान ने उसे देखते ही टहलना बंद कर दिया। वो बड़े इत्मीनान से तैयबा के बराबर बैठ गया। इमामा कहाँ है? सिकंदर ने लम्हा ज़ाया किए बगैर पूछा। कौन इमामा? इसकी जगह कोई और होता तो उसके चेहरे पर थोड़ी बहुत घबराहट ज़रूर होती, मगर वो अपने नाम का एक ही था। सिकंदर का चेहरा सुर्ख हो गया। तुम्हारी बहन? वो गुर्राए। मेरी बहन का नाम अनीता है पापा। सालार के इत्मीनान में कोई कमी नहीं आई। तुम मुझे सिर्फ़ एक बात बताओ, आखिर तुम मुझे और कितनी बार और कितने तरीक़ों से ज़लील कराओगे? इस बार सिकंदर उस्मान दूसरे सोफ़े पर बैठ गए। आप क्या कह रहे हैं पापा? मेरी समझ में नहीं आ रहा, सालार ने हैरानी से कहा। हालांकि तुम्हारी समझ में अब सब कुछ आ रहा है, उन्होंने तंज़िया अंदाज में कहा। देखो, मुझे आराम से बता दो कि इमामा कहाँ है। ये मामला इतना सीधा नहीं है जितना तुमने समझ लिया है। पापा, आप किस इमामा की बात कर रहे हैं? मैं किसी इमामा को नहीं जानता। मैं वसीम की बहन की बात कर रहा हूँ। सिकंदर उस्मान इस बार गुर्राए। वसीम की बहन? वो कुछ सोच में पड़ गया। अच्छा, याद आया, वो जिसने मुझे ट्रीटमेंट दिया था लास्ट ईयर। हाँ, वही। अब चूंकि तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई है, इसलिए मुझे ये भी बता दो कि वो कहाँ है। पापा, वो अपने घर में होगी या मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में। मेरा उससे क्या ताल्लुक़? उसने हैरानी से सिकंदर से कहा। उसके बाप ने तुम्हारे खिलाफ़ अपनी बेटी के अगवा का केस करवा दिया है। मेरे खिलाफ़? आई डोंट बिलीव इट। मेरा इमामा से क्या ताल्लुक़ है? उसने पुरसुकून लहजे और बेतासुर चेहरे के साथ कहा। यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा उसके साथ क्या ताल्लुक़ है। पापा, मैं उसको जानता तक नहीं हूँ। एक दो बार के अलावा मैं उससे मिला तक नहीं। फिर उसके अगवा से मेरा क्या ताल्लुक़? और मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो अगवा हो गई है। सालार, अब ये एक्टिंग बंद करो। मुझे बता दो कि बच्ची कहाँ है। मैंने हाशिम मुबीन से वादा किया है कि मैं उनकी बेटी को उन तक पहुँचाऊँगा, तो आप अपना वादा पूरा करें। अगर उनकी बेटी को उन तक पहुंचा सकते हैं तो ज़रूर पहुंचाइए, मगर मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? इस बार सालार ने नागवारी से कहा। देखो सालार, तुम्हारे और इमामा के दरमियान अगर किसी भी किस्म की अंडरस्टैंडिंग है तो हम इस मामले को हल कर लेंगे। मैं ख़ुद उसके साथ तुम्हारी शादी करवा दूंगा। तुम फ़िलहाल ये बताओ कि वो कहाँ है। सिकंदर उस्मान ने इस बार अपने लबो लहजे में तब्दीली लाते हुए कहा। फॉर गॉड सेक पापा, स्टॉप इट। कौन सी अंडरस्टैंडिंग? कैसी शादी? मेरी किसी के साथ अंडरस्टैंडिंग होती तो मैं उसे अगवा करूँगा और मैं अंडरस्टैंडिंग डेवलप करूँगा इमामा जैसी लड़की के साथ। वो मेरी टाइप है। इस बार सालार ने बुलंद आवाज़ में कहा। तो फिर वो तुम पर उसके अगवा का इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हैं? ये आप उनसे पूछें, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? उसने उसी नागवारी से जवाब दिया। आज हाशिम मुबीन कह रहे हैं, कल को कोई और आकर कहेगा और आप फिर मुझ पर चिल्लाना शुरू कर देंगे। मैंने आपको बताया है, मैं सो रहा था जब पुलिस आकर बाहर खड़ी हो गई और अब आप आ गए हैं और आते ही मुझ पर। मुझे तो ये तक नहीं पता कि वसीम की बहन अगवा हुई है या नहीं। आखिर वो लोग मुझ पर इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हैं? क्या सबूत है उनके पास कि मैंने उनकी बेटी को अगवा किया है? और बिलफ़र्ज़ मैंने अगवा किया भी है तो क्या मैं यहाँ अपने घर बैठा रहूँगा? मुझे इस वक्त उस लड़की के साथ होना चाहिए। सालार तल्खी से बोलता रहा। मुझे एसपी से तुम्हारे केस की तफसीलात का पता चला है। फिर मैंने कराची से हाशिम मुबीन को फ़ोन किया। वो मुझसे बात करने पर तैयार नहीं था। मुझे उससे बात करने के लिए मिन्नतें करनी पड़ी। उसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया है। उसकी बेटी रात को गायब हुई है और तुम भी रात को गए हो और सुबह आए हो। तो पापा, इसमें अगवा कहाँ से आ गया? पहली बात तो ये है कि मैं रात को कहीं नहीं गया और दूसरी बात यह है कि अगवा करने के लिए किसी के घर जाकर लड़की को ज़बरदस्ती ले जाना ज़रूरी है और मैं किसी के घर नहीं गया। हाशिम मुबीन के चौकीदार ने रात को तुम्हें जाते और सुबह आते देखा है। उसका चौकीदार झूठा है। सालार ने बुलंद आवाज़ में कहा। मेरे चौकीदार ने तुम्हें रात को एक लड़की को कार में ले जाते देखा है। सिकंदर ने दांत पीसते हुए कहा। सालार चंद लम्हे कुछ बोल ना सका। सिकंदर यकीनन घर आते ही चौकीदार से बात कर चुके थे। वो मेरी एक फ्रेंड थी जिसे मैं घर छोड़ने गया था, उसने तैयबा को देखते हुए कहा। कौन है वो फ्रेंड? उसका नाम और पता बताओ। सॉरी पापा, मैं बता नहीं सकता, इट्स पर्सनल।
यहाँ इस्लाम आबाद छोड़ने गए थे? हाँ, तुम उसे लाहौर छोड़ कर आए हो। एसपी ने मुझे खुद बताया है। तुम 4 नाकों से गुजरे हो, चारों पर तुम्हारा नंबर नोट किया गया है। रास्ते में तुमने एक सर्विस स्टेशन पर रुककर गाड़ी चेक करवाई है, उस लड़की के साथ वहाँ खाना खाया है। सिकंदर ने उस सर्विस स्टेशन और होटल का नाम बताते हुए कहा। सालार कुछ देर सिकंदर को देखता रहा, मगर उसने कुछ भी नहीं कहा। एसबी ने मुझे ये सब कुछ खुद बताया है। उसने अभी हाशिम मुबीन को ये सब कुछ नहीं बताया। उसने मुझसे कहा है कि मैं तुमसे बात करूं और खामोशी के साथ लड़की को वापस पहुंचा दूं, या उसके घर वालों को उस लड़की का पता बता दूं, ताकि ये मामला खामोशी से किसी मसले के बगैर ख़त्म हो जाए। मगर वो कब तक हाशिम मुबीन को नहीं बताएगा। वो दोस्ती का लिहाज करके सब कुछ छुपा भी गया, तब भी हाशिम मुबीन के और बहुत से ज़राए हैं। उसे वहाँ से पता चल जाएगा और फिर तुम्हारी पूरी ज़िंदगी जेल में गुजरेगी। सिकंदर ने उसे डराने की कोशिश की। वो मुतासिर हुए बगैर उन्हें देखता रहा। अब झूठ बोलना छोड़ दो और मुझे बता दो कि वो लड़की कहाँ है। वो लड़की रेड लाइट एरिया में है। सिकंदर को उसकी बात पर करंट लगा। व्हाट? मैं उसे वहाँ से लाया था, वहीं छोड़ आया हूँ। वो सफ़ेद चेहरे के साथ सालार को देखते रहे। मगर वो इमामा नहीं थी। मैं परसों लाहौर गया हुआ था, वहाँ से मैं रात गुजारने के लिए उस लड़की को लाया था। आज मैं उसे वहाँ छोड़ आया। मेरे पास उसका कोई कॉन्टैक्ट नंबर तो नहीं है, मगर आप मेरे साथ लाहौर चलें तो मैं आपको उस लड़की के पास ले जाता हूँ, या पता बता देता हूँ। आप ख़ुद या पुलिस को कहें कि वो उस लड़की से तस्दीक कर ले। कमरे में यकदम खामोशी छा गई। तैयबा और सिकंदर बेयकीनी से सालार को देख रहे थे, जबकि वो बड़े मुतमईन अंदाज में खिड़कियों से बाहर देख रहा था। मुझे यकीन नहीं आता कि तुम इस तरह की हरकत कर सकते हो, तुम ऐसी जगह जा सकते हो। एक लंबी खामोशी के बाद सिकंदर ने कहा, आई एम सॉरी पापा, मगर मैं जाता हूँ। और इस बात का इमामा के भाई वसीम को भी पता है। मैं कई बार वीकेंड पर अपने दोस्तों के साथ वहाँ जाता रहा हूँ, और वसीम ये बात जानता है। आप उससे पूछ लें। एड्रेस दो उस लड़की का। वो कुछ देर बाद घुर्राए। मैं अपने कमरे से लेकर आता हूँ, उसने उठते हुए कहा। अपने कमरे में आकर उसने मोबाइल उठाया और लाहौर में रहने वाले अपने एक दोस्त को फ़ोन करने लगा। उसे सारी सूरत हाल बताने के बाद उसने कहा, अकमल, मैं अपने पापा को रेड लाइट एरिया के उस घर का पता दे रहा हूँ जहाँ हम जाते रहते हैं। तुम वहाँ किसी भी ऐसी लड़की को जो मुझे जानती हो, उसको इस बारे में बता दो। मैं अभी कुछ देर तक तुम्हें दोबारा फ़ोन करता हूँ। वो कहते हुए तेज़ी से एक चिट पर एक एड्रेस लिखने लगा और फिर उसे लेकर सिकंदर के कमरे में आ गया। उसने चिट सिकंदर के सामने कर दी, जिसे उन्होंने तकरीबन छीन लिया। एक नज़र उस चिट पर डालकर उन्होंने खशमगीन नज़रों से उसे देखा। दफ़ा हो जाओ यहाँ से। वो इत्मीनान से अंदाज में वहाँ से आ गया। अपने कमरे में आकर उसने अकमल को दोबारा फ़ोन किया। मैं तुम्हें वहाँ पहुँच कर फ़ोन करता हूँ, अकमल ने उससे कहा। वो बेड पर लेटकर उसका इंतज़ार करने लगा। 15 मिनट के बाद अकमल ने उसे फ़ोन किया। सालार, मैंने सनिया को तैयार किया है, उसे मैंने सारा मामला समझा दिया है। अकमल ने उसे बताया। वो सनिया को जानता था। अकमल, अब तुम्हें कागज़ और पेंसिल लो और मैं कुछ चीज़ें लिखवा रहा हूँ, उसे लिखो, उसने अकमल से कहा और फिर उसे अपने घर के बैरूनी मंजर और लोकेशन की तफसीलात लिखवाने लगा। ये क्या? मैंने देखा हुआ है तुम्हारा घर, अकमल ने कुछ हैरानी से उससे पूछा। तुमने देखा है? सनिया ने तो नहीं देखा। ये सारी तफसीलात मैं सनिया के लिए लिखवा रहा हूँ। अगर पुलिस उसके पास आई तो वो ये सारी चीज़ें उससे पूछेगी, सिर्फ ये तस्दीक करने के लिए कि क्या वो वाकई मेरे साथ यहाँ इस्लामाबाद में थी। वो गाड़ी में छुप कर आई थी और रात के वक्त आई थी, इसलिए उसे ज़्यादा तफसील का नहीं पता। मगर घर के अंदर दाखिल होते हुए दाएं और बाएं दोनों तरफ लॉन है। मेरी गाड़ी का रंग सुर्ख था, स्पोर्ट्स कार, और नंबर। वो उसे लिखवाता गया। हम पुलिस के 4 नाकों से गुजरे थे। उसने सफ़ेद शलवार कमीज़, सफ़ेद चादर और स्याह स्वेटर पहना हुआ था। रास्ते में हम उस नाम के सर्विस स्टेशन पर भी रुके थे। सालार ने नाम बताया। सर्विस स्टेशन और होटल धुंध की वजह से सही तरह नहीं देख सकी। सालार यके बाद दीगरे हर चीज़ की तफसील लिखवाता गया। सर्विस स्टेशन पर गाड़ी ठीक करने वाले आदमी से लेकर चाय बनाने वाले लड़के के हुलिये और उस कमरे की तफसीलात, उन्होंने क्या क्या खाया था, सालार और लड़के के दरमियान क्या गुफ्तगू हुई थी, उसने छोटी छोटी तफसीलात उसे लिखवाई थी। उसने अपने घर के पोरत से लेकर अपने कमरे तक के रास्ते और अपने कमरे का तमाम हुलिया भी उसे नोट करवा दिया था।
سنیا سے کہو یہ سب کچھ رٹ لے۔ اس نے اکمل کو آخری ہدایت دی اور فون بند کر دیا۔ فون بند کر کے وہ بیڈ پر بیٹھا، ابھی سوچ رہا تھا جب سکندر عثمان اچانک دروازہ کھول کر اس کے کمرے میں آئے۔ اس لڑکی کا کیا نام ہے؟ سنیا، سالار نے بے اختیار کہا۔ سکندر عثمان مزید کچھ کہے بغیر کمرے سے نکل گئے۔